This is Tahir Ali. That is called a verb. This is your host. Bismillahirrahmanirrahim. Number 3. अस्सलाम वालेकुम. तो इसका Y कैपिटल होगा. So join my channel and press the bell icon so that every video of mine will be on your phone at the right time. Thank you so very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel English with Tahir Ali, and this is your host Tahir Ali. Today's topic is very important once again, as I've told you earlier in the previous video that tenses are one of the most important topic in English language and grammar. Similarly, the second part of tenses, that is passive voice, the sentences related to passive voice. There are two types of sentences. They are called voices. I mean to say there are two types of voices. One voice is active voice and the other is passive voice. So we must have the knowledge and the clarification of both the voices. One thing I will clear you today, that in tenses we know 12 tenses, and there are 12 tenses of active voice. But all these 12 tenses can be converted into passive voice. So it means active and passive both have the same number of sentences in vocabulary and English grammar. But there are several sentences. There are several sentences in passive voice that cannot be converted into active voice. It means the number of sentences of passive voice is larger than the number of sentences in active voice. So dear friends and students, today we will discuss all the rules and regulations to convert the sentences of active voice into passive voice. And we will remove all the ambiguities and confusions regarding the conversion of sentences from active to passive voice. Some students and at some cases its conception of all the 12 tenses cannot be converted into passive voice because they consider all three perfect continuous sentences cannot be converted into passive voice. But this opinion is wrong. There can be a need of speaking and writing the sentences of perfect continuous, all the three perfect continuous sentences. So we will discuss them also, and with a very light and beautiful way you will understand all the rules and regulations and all the methods and techniques regarding the topic today, inshallah. सबसे पहली बात कि आपने इस पूरी वीडियो को गौर से देखना है, कोशिश करनी है समझने की. होता क्या है कि बच्चा कोशिश नहीं करता, वो 2-3 मिनट किसी भी चीज़ को देखता है, समझता है, कैजुअली समझने की कोशिश करता है. तो वो जब समझ नहीं आती तो वो बोर हो जाता है, या वो ये ऑलरेडी जो उसने जहन में पहले से बना रखा होता है कि मुझे टेंसेस की समझ नहीं आती, तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बैठता है. तो वो पहले 5-4 मिनट कोशिश करता है कैजुअल सी, तो जिसमें समझ नहीं आती तो उसको वीडियो को या लेक्चर को स्किप कर देता है. तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट और एडवाइस है कि पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, उसको सीरियसली आपने कोशिश करनी है समझने की, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किन किन टाइप्स के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट देम. So first of all, we will discuss the types of sentences from which sentences can be converted into passive voice from active voice. तो वो types हैं 5 types के sentences active से passive voice में convert होते हैं. Number 1, sentences belong to tenses. ऐसे sentences जो tenses 12 tenses से belong करते हैं. Number 2, सेंटेंसेस बिलोंग टू मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं शायद आप जानते हो. मॉडल वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं
जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट हैव, शुड हैव वगैरह, यूज टू, ऑट टू। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस कहते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस भी एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव की पूरी टॉपिक, पूरी एक्सरसाइज मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लास की वीडियोस में आपको मिल सकती है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये सेंटेंसेस हमारी आम लैंग्वेज में, रोजमर्रा की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस की गई हो, वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 4, वो सेंटेंसेस जो लेट पर बेस करते हैं, यानी लेट उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुआ होता है। लेट वाले सेंटेंसेस आप सिंपली कह सकते हैं। और नंबर 5, इन्फिनिटिव्स वाले, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इन्फिनिटिव इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो सबसे पहले आपने समझना है कि चेंज ऑफ वॉइस ये क्या होती है? चेंज ऑफ वॉइस क्या होती है? Voices, there are 2 voices. One is active voice and the other is passive voice. Active voice, voice का मतलब क्या है? बात करने का, बोलने का अंदाज, लिखने का या बोलने का अंदाज। Voice means sound, किस साउंड से बात हो रही है, किस लहजे से, किस अंदाज से बात हो रही है, उसके 2 साउंड्स होते हैं, 2 वॉइसेस होते हैं। वॉइसेस में बड़े मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं, बात वही होती है, लेकिन उसका जो अंदाज है, जो उसकी साउंड है, उसको चेंज कर दिया जाता है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाती है। अब आपने समझना है कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। वॉइस हम क्यों उसको एक्टिव कहते हैं या उसको हम क्यों पैसिव कहते हैं, इस चीज को आपने समझना है। सबसे पहले आप देखिए कि एक्टिव और पैसिव का उर्दू डिफरेंस क्या होता है। ये एक्टिव का वर्ब है, एक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम बेस वर्ब कहते हैं, और इसको पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा खाया जाना। पैसिव वॉइस हो जाएगा खाया जाना। इसी तरह से पीना, और पैसिव वॉइस में होगा पिया जाना, राइट। इसी तरह से लिखना, और पैसिव में हो जाएगा लिखा जाना, राइट। इसी तरह से होगा पढ़ना, और पैसिव में हो जाएगा पढ़ा जाना, राइट। तो मतलब यह है कि एक्टिव और पैसिव में सिर्फ वर्ब के एक्शन का फर्क है। एक्टिव में किसी सेंटेंस को हम एक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो वर्ब होता है वो एक डूअर कर रहा होता है, एक सब्जेक्ट कर रहा होता है। वो चाहे सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो कर रहा होता है, वो बजाते खुद एक्टिव होता है। एक्टिव से मुराद क्या है कि एक्टिव क्या, कि सब्जेक्ट क्या एक्टिव होता है, यानी कि वो एक्टिव मीन्स तेज होता है, चालाक होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इशारा आपने याद रखना है कि वो सेंटेंस एक्टिव होता है जिसका सब्जेक्ट, जिसका डूअर चालाक होता है, यानी तेज होता है। वो सबसे पहले सेंटेंस में आता है, ही इज वेरी फास्ट एंड कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। वो बड़ा तेज होता है और वो जल्दी से सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। ये आपने इशारा याद रखना है। और वो डूअर उस काम को कर रहा होता है बजाते खुद, और वो एक्टिव सेंटेंस होता है। और पैसिव सेंटेंस वो होता है जिसमें वो काम उससे, उसके जरिए से करवाया जा रहा होता है, उसको हम पैसिव कहते हैं। इस पैसिव सेंटेंस में डूअर, पैसिव का मायने क्या होता है? लेजी। आपने लफ्ज ये सुना होगा पैसिवली, पैसिव,
पैसिव मतलब लेजी, लेजीली। तो पैसिव सेंटेंस में जो डूअर होता है वो पैसिव होता है। पैसिव उसको क्यों कहते हैं, सेंटेंस को पैसिव इसलिए कहते हैं कि उसका जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो पैसिव होता है। इट कम्स एट द एंड और एट द मिड ऑफ द सेंटेंस आफ्टर मेन वर्ब। तो वो लेजी होता है, लेट से आता है, देर से आता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये पैसिव सेंटेंस है। असल में एक्टिव और पैसिव सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो डूअर होता है वो एक्टिव होता है, इट स्टार्ट्स द सेंटेंस, इट कम्स एट द स्टार्ट। तो जो पैसिव सेंटेंस होता है वो उसमें जो डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, इट कम्स आफ्टर द मेन वर्ब और ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो आपने ये इशारा याद रखना है, जो सेंटेंस का डूअर। दूसरी एक और कंफ्यूजन वो भी होती है अक्सर तुलबा को, अक्सर लोगों को, वो ये है कि जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं, कुछ तुलबा और कुछ जगहों पर यह कंसेप्शन है कि 12 टेंसेस हैं और इन 12 टेंसेस के अंदर से सिर्फ 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बन सकते हैं, जबकि ये कंसेप्शन रॉन्ग है। इसको भी आज हम क्लियर करेंगे कि ये कैसे रॉन्ग है। उन टेंसेस के 12 में से किन 8 को पैसिव कंसीडर किया जाता है और बाकी 4 को क्यों नहीं बनाया जाता, और ये बन सकते हैं, इनकी जरूरत पेश आ सकती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये समझ लेना है। दूसरी कंफ्यूजन ये होती है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डूअर होता ही नहीं और काम हो रहा होता है, तो वो सेंटेंसेस ओरिजिनली पैसिव वॉइस के होते हैं। तो जिनमें काम करने वाला नहीं होता, जिन सेंटेंसेस में, या जिनमें काम करने वाला डूअर जो है वो लेट आता है इन द सेंटेंस, पोजीशन ऑफ द सेंटेंस लेट आता है, वो सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का कहलाता है। तो ये तो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है कि उर्दू से आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो आप देखिए इसकी एग्जांपल भी। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन उर्दू होती है, लेकिन जब हम इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो इनकी शक्ल बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, हम खाना खा रहे हैं, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसके अंदर बड़े वाजे से हमें नजर आ रहा है कि ये डूअर है, काम करने वाला है, और ये फिक्रे के सबसे पहले आ रहा है, और यही बजाते खुद ये खाने का काम ये डूअर बजाते खुद इसको परफॉर्म कर रहा है। ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो काम यही होगा, कर भी यही रहा होगा सब्जेक्ट, लेकिन इसकी पोजीशन सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाएगी और काम करने की जो फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए, खाना हमसे खाया जा रहा है, खाना हमसे खाया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि काम भी एक ही वही हो रहा है, करने वाला भी वही है, काम भी वही है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है मींस ऑब्जेक्ट वो भी वही है। सिर्फ क्या है, इसमें इस सेंटेंस में खाना जो है फोकस किसके ऊपर हो रहा है, खाने के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर। खाना ऑब्जेक्ट है और खाया जा रहा जो काम है ये किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा है। डूअर भी इसमें सेम है, डूअर भी इसमें सब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर फोकस हो रहा है। तो सेंटेंस के दोनों मीनिंग्स के लिहाज से इन दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, इसकी वॉइस में फर्क है कि इसमें डूअर मौजूद है और वो फिक्रे को शुरू कर रहा है, काम बजाते खुद कर रहा है, और पैसिव वॉइस में ये काम जो है, खाना खाने का जो काम है, ये उसी सब्जेक्ट के जरिए से करवाया जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस।
इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए किसी और टेंस की। वो पानी पीता है। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है, डूअर जो है, वो बजाते खुद मौजूद है एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, और पानी पीने का काम वो बजाते खुद कर रहा है। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पानी उससे पिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा कि काम वही, करने वाला भी वही, सिर्फ उसकी वॉइस चेंज है। वो साउंड डिफरेंट कर रहा है। एक्टिव से पैसिव में सिर्फ इतना फर्क है कि उसकी साउंड में फर्क होता है, वॉइस में फर्क होता है। अब देख रहे हैं आप, वो पानी पीता है, पानी उससे पिया जाता है, काम भी वही, करने वाला भी वही, सिर्फ उसका वॉइस चेंज है। उसमें डूअर बजाते खुद नजर आ रहा है, काम करने वाला, और इसमें उस डूअर से काम करवाया जा रहा है। इसी तरह अगले सेंटेंस में देखिए, किसी और टेंस का सेंटेंस देखिए। उसने खत लिखा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये उस सब्जेक्ट है और ये डायरेक्टली बजाते खुद लिखने का काम वो परफॉर्म कर रहा है। उसने खत लिखा। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो ये होगा खत उससे लिखा गया। खत उससे लिखा गया, काम वही, उसने खत लिखा या खत उससे लिखा गया, काम भी सेम है, सिर्फ उसकी साउंड चेंज है कि वो डूअर खुद कर रहा है और वो सेंटेंस को स्टार्ट भी कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर डूअर आ रहा है बजाते खुद, एक्टिव है। इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, तेज है, चालाक है, पहले नंबर पर आ रहा है, जल्दी से आ रहा है सेंटेंस के अंदर। और इसमें आप देख रहे हैं कि डूअर जो है वो लेजी है, पैसिव है, सुस्त है, लेट आ रहा है सेंटेंस के अंदर, पहले पे ऑब्जेक्ट आ रहा है जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है। तो काम करने वाला वही है, लेकिन इसमें फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा और काम उससे करवाया जा रहा होगा। तो आप देख रहे हैं, उसने खत लिखा, खत उससे लिखा गया। इसी तरह से पढ़ना, वो अखबार पढ़ चुका है। वो अखबार पढ़ चुका है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये डूअर है और ये डूअर पढ़ने का काम बजाते खुद परफॉर्म कर रहा है और फिक्रे को स्टार्ट भी कर रहा है। एज अ डूअर ही आ रहा है, एक्टिव है, पहले आ रहा है, स्टार्ट पे आ रहा है। तो इसको जब पैसिव बनाएंगे तो इसकी शक्ल क्या होगी? अखबार उससे पढ़ा जा चुका है। अखबार उससे पढ़ा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें काम सेम है, काम करने वाला भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ उसकी साउंड डिफरेंट है, कि उसकी वॉइस डिफरेंट है, कि इसमें काम करने वाला बजाते खुद वो काम परफॉर्म कर रहा है और एक्टिव है। डूअर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को। इसमें काम भी वही, लेकिन काम उस डूअर से लिया जा रहा है, उस डूअर के जरिए से काम करवाया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये तो है उर्दू में डिफरेंस कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव का और कौन सा पैसिव का होता है। जी, तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने समझा कि उर्दू सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। बड़ी वाज़ेह से निशानियां को बता दी। एक और हिंट याद रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस के होते हैं उनका क्लोजिंग
एंड क्या होता है, उसमें आप सब सेंटेंसेस में देख रहे हैं जा का लफ्ज जरूर आएगा, ये गया भी जा की ही फॉर्म है, और जो क्लोजिंग उसका वर्ब जो होगा वो जा के साथ आएगा। एक्टिव वॉइस में क्योंकि डायरेक्टली वो वर्ब किसी डूअर के जरिए से वो परफॉर्म हो रहा होता है, डूअर उसको बजाते खुद कर रहा होता है, तो वो उसी टेंस का आइडेंटिफिकेशन लेता है एक्टिव सेंटेंस उर्दू में। लेकिन पैसिव वॉइस में चूंकि वो काम किसी से करवाया जा रहा होता है, तो इसलिए जा का लफ्ज कंपलसरी है, ये आपने निशानी रखनी है उर्दू सेंटेंसेस में। जो दूसरी कंफ्यूजन मैं आपको बता रहा था कि ऐसे सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस कहते हैं जिनके अंदर डूअर होता ही नहीं। ये तो आपने तय बात रखनी है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डूअर लेट है इन द पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, पैसिव है, सुस्त है, वो लेट आता है, पहले काम हो जाता है, वो लेट आता है, तो काम पहले हो जाता है, यानी जिस चीज के ऊपर काम होना होता है वो पहले आ जाता है और काम करने वाला बाद में आता है, ये उसको इसी वजह से उसको पैसिव कहते हैं, यानी वो सुस्त है, काम करने वाला सुस्त है। या तो सेंटेंस के अंदर काम करने वाला पहले नंबर पर नहीं आएगा, यानी एक्टिव नहीं होगा, स्टार्ट सेंटेंस को नहीं करेगा, तो वो पैसिव होगा। या दूसरा सेंटेंस जिनके अंदर डूअर होता ही नहीं, काम हो रहा होता है, उसकी भी मैं चंद एक एग्जांपल्स आपको बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 12 टेंसेस के 12 पैसिव में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डूअर मौजूद होता है, एक्टिव के अंदर डूअर मौजूद होता है, दे कैन बी कन्वर्टेड पैसिव वॉइस। लेकिन जो ओरिजिनली पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव में नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एक्टिव डिमांड्स अ सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव एक सब्जेक्ट की डिमांड करता है, उसके बगैर वो एक्टिव नहीं बन सकता, कहलाता ही नहीं। वो आप सेंटेंसेस देखिए जो डूअर लेस होते हैं, सब्जेक्ट लेस होते हैं, यानी फाइल के बिना आते हैं। देखिए, सड़कें बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, इसमें आप देख रहे हैं काम हो रहा है, कौन सा? बनाने का काम हो रहा है, ये काम है बनाने का काम, और इसके साथ भी जा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, राइट। और जो जिस पर काम हो रहा है, किस पर? ये बनाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? सड़कों के ऊपर हो रहा है। तो ये सड़कें जो लफ्ज है ये सब्जेक्ट तो नहीं कहलाएगा ना, कॉमन सेंस हमें कहती है कि ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। जब इसके ऊपर काम हो रहा है और काम भी हो रहा है तो काम करने वाला मौजूद नहीं, हमें नहीं नजर आ रहा, पता नहीं लग रहा कि इसमें काम करना। सड़कें बनाई तो जा रही हैं लेकिन कौन बना रहा है? इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, नतीजा का ऐलान किया जा चुका है, नतीजा का ऐलान किया जा चुका है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वर्ब क्या हो रहा है, काम इसमें क्या है? ऐलान किया जा रहा है, ये इसका वर्ब है, और इस वर्ब के साथ जा का लफ्ज भी, दूसरी निशानी भी आपको नजर आ रही है। और ये ऐलान किस चीज का किया जा रहा है? नतीजा का ऐलान किया जा रहा है, तो काम किसके ऊपर हो रहा है? नतीजा के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना कि सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, नतीजे का ऐलान हो रहा है, यानी नतीजे के ऊपर ऐलान होने का काम परफॉर्म हो रहा है, और काम करने वाला इस सेंटेंस में हाजिर नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा ये एक्टिव में तो बन ही नहीं सकता, एक्टिव में ये सेंटेंस चेंज हो ही नहीं सकता। तो ये ओरिजिनली पैसिव वॉइस है। एक और एग्जांपल लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका फर्दर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। खाना पक रहा है। अब देखिए, ये शक्ल से तो आप ऊपर जो मैंने हिंट दिया जा का लफ्ज वो नहीं है इसके अंदर, लेकिन अकल तो है हमारे अंदर, वो तो हमें बता रही है कि इस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो मौजूद है, लेकिन खाना पकाने वाला मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये पक रहा है, ये काम हो रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है? पकने का, खाने के ऊपर, मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ।
और ऑब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पे आने की वजह से भी हमें समझ आ रही है कि ये पैसिव वॉइस है, और दूसरी बड़ी वाज़ेह इसमें साइन है कि इसमें डूअर मौजूद नहीं, खाना पकाने का काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो ये ओरिजिनली पैसिव वॉइस है। इस तरह के सेंटेंसेस सारे के सारे जिनमें काम हो रहा है, जिस चीज के ऊपर काम होता है वो चीज भी मौजूद हो लेकिन काम करने वाला प्रेजेंट ना हो इन द सेंटेंस, दो sentences are called passive voice, originally passive voice, they cannot be changed into active voice। तो ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स उर्दू में आइडेंटिफिकेशन कि हम उर्दू सेंटेंसेस को कैसे जज कर सकते हैं कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। नाउ कम टू द फर्दर प्रोसीडिंग्स। जी तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हम वो 5 रूल्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जिनको अप्लाई करते हुए हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। नंबर 1, आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस को सबसे पहले जो स्टार्टर चाहिए होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। वो एक्टिव सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट होता है और पैसिव सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो पैसिव सेंटेंस का होता है वो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। नंबर 2, एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, जगह बदलेंगे। ये जैसे मैं आपको पहले भी उर्दू में एग्जांपल्स के साथ समझा चुका हूं कि सब्जेक्ट एक्टिव में, उसको एक्टिव कहते ही इस वजह से कि उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, काम करने वाला बजाते खुद फिक्रे को स्टार्ट कर रहा होता है, बजाते खुद वो काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो पैसिव में क्या होता है, वो सब्जेक्ट जो है वो लेट हो जाता है, देर से आता है इन द पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। नंबर 3, यूज ऑफ वर्ब 3, third form of the verb is compulsory in all types of sentences in passive voice। third form of verb कंपल्सरी है पैसिव सेंटेंसेस के अंदर। ये तो आपने तय रखनी है बात, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकंड लगनी है, थर्ड लगनी है या फोर्थ फॉर्म लगनी है। एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो, पैसिव में वो जाके थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कंपल्सरी है, राइट। एंड नंबर 4, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये भी कंपल्सरी है, ये भी कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस एक्टिव के ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दो टेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट डेफिनेट के और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ये आप मेरी पिछली टेंसेस की वीडियो से इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में ये कंपल्सरी है, हेल्पिंग वर्ब हर तरह के फिक्रे में लाजम है। नंबर 5, यूज ऑफ बाय, बाय का इस्तेमाल, दिस इज कंडीशनल, ये कंडीशनल है, ये कंपल्सरी नहीं है। ये मैं आपको इसकी वजाहत भी थोड़ी देर बाद करता हूं कि बाय का इस्तेमाल कंडीशनल क्यों है। तो ये 5 रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करके एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, नाउन रिमेन्स नाउन ऑलवेज। अगर वो नाउन सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो भी वो अपनी शक्ल वही रखेगा, उसी स्ट्रक्चर से आएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो भी वही, उसकी स्ट्रक्चर वही रहेगी। लेकिन जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और होते हैं और उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो कोई और होती है। ये मैंने पिछली अपनी वीडियो में द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में इस बात को बड़े क्लियरली डिस्क्राइब किया था कि एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेसेस पर अपनी फॉर्म, अपने स्ट्रक्चर सेम रखता है, लेकिन जो प्रोनाउन होता है
वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और होता है। उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी टेबल बना के देता हूं ताकि आपको याद रहे व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंसेस। देखिए, इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। राइट? तो वो देखिए कौन से सब्जेक्ट के तौर पर आने वाले प्रोनाउंस हैं, जैसे कि ही will be him in passive voice, she into her, it remains it at both the positions, I बन जाता है me, we बन जाता है us, और यू ही रहता है दोनों जगहों पर, और दे बन जाता है them। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये पर्सनल प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिस्ट है। आपने याद रखना है कि पैसिव वॉइस में ये वाली लिस्ट सारी इस्तेमाल होगी, यानी जब ये सब्जेक्ट जो हैं पैसिव में आएंगे तो वो ये फॉर्म इख्तियार करेंगे, ये शक्ल इख्तियार करेंगे। राइट? अब हम चलते हैं अपने तीसरी टेबल की तरफ, तीसरे चार्ट की तरफ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट विल क्लियर ऑल ऑफ योर कंफ्यूजन्स। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कंफ्यूजन थी आपको गुज़श्ता इससे पहले कि 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते। तो उनका भी मैं आपको बताता हूं अभी कि वो 4 भी बनते हैं, बट वेरी रेयरली उनकी ज़रूरत भी पेश आती है। तो उनका क्या इस्तेमाल है, किस तरह से हम उनको बनाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का चेंज। एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो पैसिव वॉइस में क्या शक्ल इख्तियार करेंगे? एक्टिव, और इनकी शक्ल जो पैसिव वॉइस में होगी वो क्या होगी? एक्टिव टेंसेस हमारे पास 4 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए कि उनके भी आपको सारे अलग-अलग से 12 के 12 हेल्पिंग वर्ब्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मैं आपको बिल्कुल इजीफाई करके देता हूं। नंबर 1 टेंस है हमारे पास इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के अंदर कितने टेंसेस होते हैं इंडेफिनिट के? ऑफ कोर्स 3 होते हैं, ये तो आपको पता है कि हर जमाने में 4 काम होते हैं, और जैसे कि इंडेफिनिट तीनों जमानों में, कंटिन्यूअस तीनों जमानों में, परफेक्ट तीनों जमानों में, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो तीनों जमानों में। तो इंडेफिनिट है 3, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर 1, प्रेजेंट डेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डू डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस का एडिशन होता है, ये है प्रेजेंट डेफिनिट। राइट? ये प्रेजेंट डेफिनिट पैसिव वॉइस में यानी डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ एस या ई एस लगा हो तो हमें फौरन क्लिक करता है कि ये प्रेजेंट डेफिनिट है। मीन्स के प्रेजेंट डेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव में होगा इज, एम और आर। नंबर 2 हमारे पास
पैसिव इंडेफिनेट कौन सा होता है? नंबर 2 इंडेफिनेट होता है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंसेस में। तो आपने याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस सिंपल होंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होंगे तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी डिड आए या सेकंड फॉर्म आए आपने इसका हेल्पिंग वर्ब कर देना है was या वर। नंबर 3 इंडेफिनेट होता है फ्यूचर इंडेफिनेट, और फ्यूचर इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल। विल या शैल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये आपको पता है। और विल शैल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू विल बी एंड शैल बी। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये तो हो गए इंडेफिनिट टेंसेस जिनकी एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब ये होती है और उनकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब ये बन जाती है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे टेंस की तरफ जो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस भी डेफिनेटली 3 होते हैं, देखिए जरा। कंटिन्यूअस दूसरा टेंस है हमारे पास कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डेफिनेटली ये भी 3 होते हैं ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और एक बात और आपने याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के ऊपर आपको कमांड तब होगी जब आपको टेंसेस की नाउ हाउ होगी, क्योंकि टेंसेस आपको पता होंगे तो ही आप उनको एक्टिव सेंटेंसेस का पता होगा तो ही उनको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरी गुज़श्ता वीडियो आप देख सकते हैं टेंसेस इन अ ग्लैंस, जिसमें 12 टेंसेस एक ही लेक्चर में मैंने क्लैरिफाई किए हैं। तो उसको आप देखिए ताकि आपको ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बड़ी आसानी से और वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। तो दूसरा टेंस हमारे पास है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के भी ऑफ कोर्स 3 टेंसेस होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर। और कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, जो कि अभी मैं आपको बताता हूं कि कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को कैसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक इशारे से आपको समझ आ जाएगी। नंबर 2 हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है was एंड वर। नंबर 3 हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो कि हेल्पिंग वर्ब लेता है विल बी एंड शैल बी। जो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जो कंफ्यूजन, जो एम्बिग्यूटी या मिसकंसेप्शन था, आप वो भी क्लियर करते जाइए अबाउट दिस पर्टिकुलर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो इसके भी पैसिव वॉइस बनते हैं बट वेरी रेयरली, बहुत कम, लेकिन बनते हैं, जरूरत पेश आ सकती है। इसका मैं आपको एक उर्दू में एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का उर्दू फिक्रा है कि हम सबक पढ़ रहे होंगे, हम सबक पढ़ रहे होंगे। तो इसको हम अगर पैसिव वॉइस में बनाएं तो सबक हमसे पढ़ा जा रहा होगा। तो ये सेंटेंस बोला जा सकता है, हमारी सेंटेंस वोकैबुलरी में ये सेंटेंस बोला जा सकता है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसी तरह से जैसे कि जो प्योरली ओरिजिनली पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका हो सकता है जैसे नतीजे का ऐलान किया जा रहा होगा। तो ये सेंटेंस हमारी सेंटेंस वोकैबुलरी में बोला और लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर लीजिए कि विल बी शैल बी वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं बन सकते, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। ये होता है और ये सेंटेंसेस हम आम लाइफ में बोल भी सकते हैं और लिखते भी हैं।
तो जो तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस का जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, तीनों का मेन हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ आपने ऐड कर देना है बीइंग। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। तो आपने डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स याद रखना है कि कंटिन्यूअस के तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के, एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जब आप बीइंग ऐड कर देंगे तो ये उसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक्टिव के ही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे तो वो उसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब देखिए हमारा तीसरा टेंस, हमारा तीसरा टेंस होता है परफेक्ट। हमारा तीसरा टेंस होता है परफेक्ट, और यकीनन परफेक्ट में भी 3 टेंसेस होते हैं। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। एंड नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव या शैल हैव। तो इसी तरह से आपने, जैसे ये हिंट आपने याद रखना है कि कंटिन्यूअस के, तीनों कंटिन्यूअस के एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड कर देंगे तो ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इसी तरह से परफेक्ट के तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ, परफेक्ट के एक्टिव के तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बीन ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे तो ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इसमें भी कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। आप सिंपली एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगाएंगे तो ये उसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। नाउ कम टू आवर फोर्थ टेंस। फोर्थ टेंस हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चौथा टेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी ऑफ कोर्स 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक इन तीनों टेंसेस के बारे में भी कहा जाता है कि इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। इसकी भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। इनके भी बनते हैं, बन सकते हैं, बट वेरी रेयरली। फॉर एग्जाम्पल उर्दू सेंटेंस की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर उसे सुबह से बुलाया जा रहा है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है जैसे कि किसान सुबह से हल चला रहा है, तुलबा 1 घंटे से पहाड़े याद कर रहे हैं, ये एक्टिव टेंस हो गया, एक्टिव का फिक्रा हो गया। तो इनकी पैसिव वॉइस की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मार्च से सड़कें बनाई जा रही हैं, या जनवरी से इम्तहानात मुनक्कद किए जा रहे हैं, इम्तहानात लिए जा रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं और ये पैसिव वॉइस साउंड में हैं। इनकी साउंड जो है, इनकी जो वॉइस है वो पैसिव वॉइस है। तो इनको भी आपने समझना है। देखिए ज़रा, इसके भी 3 टेंसेस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। नंबर 2 टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। और नंबर 3 हमारा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि इन 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी आपने इनके एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के साथ, तीनों के एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने
बीइंग का एडिशन कर देना है तो ये उसका हो जाएगा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो ये आपने हिंट्स याद रखना है। सिर्फ आपको जो फोकस करना पड़ेगा यानी ध्यान रखना पड़ेगा वो तीनों इंडेफिनिट टेंसेस के ऊपर रखना पड़ेगा। इनकी हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव की हैं वो पैसिव में बदल जाती हैं, उनकी फॉर्म उनकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव के ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने बीइंग, बिन और बीइंग ऐड कर देना है तो ये उसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। तो इसमें किसी किस्म के आपको कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात भी मिसकंसेप्शन क्लियर कर लीजिए आज कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी पैसिव वॉइस बन सकते हैं, हमारी लाइफ में इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी हमारी लाइफ में स्पीकिंग एंड राइटिंग में ज़रूरत पड़ती है, हम ये बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिए कि 12 में से 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 12 के 12 के ही पैसिव वॉइस बनते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये 3 टेंसेस और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस बहुत रेयरली इनके सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जी तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये एक्टिव की हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव की हैं। तो चलिए अब हम इन सारे रूल्स को और इन रूल्स को अप्लाई करके कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम एक एक्टिव सेंटेंस को ये रूल्स अप्लाई करके ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस की लिस्ट को फॉलो करते हुए और इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए, इनको चेंज करते हुए कैसे हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, तो उनकी हम एग्जांपल्स लेते हैं। जी तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हैं चंद एक एग्जांपल्स। हम देखते हैं कि ये जो हमारे 5 रूल्स हैं या ये पर्सनल प्रोनाउंस की जो लिस्ट है सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज है, इनको हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, ही ईट्स फूड डेली। तो सबसे पहला रूल हमने जो अप्लाई करना है इसके लिए वो है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमें एक्टिव सेंटेंस हो या पैसिव वॉइस हो, हमें जो ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस है वो उसी को फॉलो करना होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के लिए भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो वो सब्जेक्ट हमें कहां से मिलेगा? एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ये सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, ही सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, और ये ईट्स जो वर्ब है ये किसके ऊपर ये काम हो रहा है? फूड पर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किस जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर, यानी फूड सब्जेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद हमारे पास ईट्स। तो हम चलते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब की चार्ट की तरफ के सबसे पहले आप देखिए कि डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो वो होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो उसको आपने कन्वर्ट करना है इज, एम या आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो फूड चूंकि सिंगुलर है तो इज, एम, आर में से ऑफ कोर्स आप क्या लगाएंगे? इज। और ये ईट जो है ये फॉर्म बन जाएगी थर्ड, ईटन। ईटन, ईटन के बाद आएगा रूल नंबर 5, बाय। बाय, और लास्ट पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एक्टिव के सब्जेक्ट को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए ही किस में चेंज हो रहा है? हिम में। तो आप क्या बनाएंगे? ही को हिम, डेली एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया पैसिव का। तो देखिए क्या हमने 5 रूल्स अप्लाई किए इस पे। सबसे पहले एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव का सब्जेक्ट। उसके बाद ईट्स की वजह से इधर देखिए
फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ एस ऐड है यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट है। ईट्स की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया इज एम आर का, उसमें से हमने फूड सिंगुलर होने की वजह से इज लिया। और फॉर्म ऑफ कोर्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो और फोर्थ हो, आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो ईट्स इज के साथ ईटन हो जाएगा। उसके बाद हमें, ये मैंने बताया आपको पहले भी कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंपलसरी है, वो आपने करना ही है। तो हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, फॉर्म थर्ड भी लग गई। उसके बाद बाय का इस्तेमाल तब होगा, ये भी आप कंडीशनल क्यों मैंने कहा है, इसलिए कहा है कि बाय का इस्तेमाल तब होगा जब एक्टिव के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा। यानी जब एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बाय का इस्तेमाल होगा। जो सेंटेंस ओरिजिनली पैसिव वॉइस का है वो चूंकि विदाउट सब्जेक्ट होता है, काम हो रहा होता है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा होता है वो चीज भी मौजूद होती है, यानी ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, तो वो सेंटेंस बाय के बगैर इस्तेमाल होता है। इसकी भी मैं आपको आगे जाके एग्जाम्पल पेश करता हूं। वो सेंटेंस बाय के बगैर इस्तेमाल होता है, उस सेंटेंस के अंदर बाय नहीं आता है। तो बाय भी इस्तेमाल हो गया क्योंकि इसके अंदर एक्टिव के अंदर डूअर मौजूद है। तो बाय और ही जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो बन जाएगा हिम। डेली जो है रिमेनिंग पार्ट में आता है, ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। ये है अली रोट अ लेटर। तो इसमें भी हमने वही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें सेंटेंस के लिए, किसी भी सेंटेंस के लिए चाहिए होता है सब्जेक्ट, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। तो सब्जेक्ट हमें कहां से लेना है? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमने बनाना है सब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा अ लेटर। अब आ जाइए नंबर 2 पे है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इधर देखिए, डिड हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी एक्टिव में आप देख रहे हैं नो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो उसका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है वॉज या वर। अब चूंकि लेटर सिंगुलर है तो हम इसके साथ ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, राइट। और ये रोट जो है ऑफ कोर्स ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, रिटन, रिटन बाय। और ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नाउन है इट रिमेन्स सेम इन द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर चूंकि नाउन सेम रहता है तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा, बाय अली, राइट। ये हो गया अली रोट अ लेटर वाज रिटन बाय अली। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। ये सेंटेंस है दे विल प्ले अ गेम। तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे पैसिव का सब्जेक्ट, अगेन, अगेन। सेकंड नंबर पर विल हेल्पिंग वर्ब है, तो विल जब आता है या शैल आता है तो ये टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो विल शैल को हमने चेंज करना है विल बी या शैल बी में। तो अगेन इसको आप क्या करेंगे, विल को विल बी बना देंगे। प्ले जो है ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म, प्लेड, और उसके बाद आ जाएगा बाय, और ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये दे का ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, दे चेंज होता है देम में, तो यहां पर आप लिख देंगे देम। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव का। दे विल प्ले अ गेम, अ गेम विल बी प्लेड बाय देम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। तो इसमें भी
आपको सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट हमें मिलेगा एक्टिव के ऑब्जेक्ट में से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के अंदर, मी भी ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट है। आप दोनों से ही इसको बना सकते हैं। तो हम मी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, ये भी आप एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के फौरन बाद आ रहा होता है, वो डायरेक्ट होता है। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे ये दोनों ही पैसिव के सब्जेक्ट बन सकते हैं, इन दोनों को बनाया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट को बनाते हैं। ये मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो देखिए, ये सिर्फ आपने एक ही चीज नहीं करनी है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव में बदलना है। जो ऑब्जेक्टिव है ऑलरेडी एक्टिव सेंटेंस में, वो सब्जेक्टिव में बदल जाएंगे जब वो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। ये तो एक तय बात है। अब देखिए कि मी किस में है, आई में, तो ये जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हो जाएगा आई, राइट। अब सेकंड प्लेस पे है हेल्पिंग वर्ब, हैज। तो इधर हम देखते हैं अपने इस चार्ट को, ये हैज हमें मिल रहा है परफेक्ट टेंसेस में। तो परफेक्ट टेंस की हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव के साथ या हैड के साथ या विल हैव शैल हैव के साथ, तीनों परफेक्ट के साथ उनकी ही असल एक्टिव हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने बीन का एडिशन कर देना है, तो वो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो देखना ये है कि हैज या हैव में से क्या इस्तेमाल होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है, आई हैव साथ हम ऐड कर देंगे बिन, आई हैव बिन। ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, एक्टिव में भी और पैसिव में तो होती ही है। तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। आई हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय, अब हमें चाहिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए और हमारा सब्जेक्ट है शी, जो कि चेंज हो रहा है शी इनटू हर, तो आप लिखेंगे इधर हर। तो ये हो गया आई हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हर, राइट। तो चलते हैं हम लास्ट सेंटेंस एग्जांपल के। ये है ही इज मेकिंग अ स्पीच। तो इसमें भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए और वो हमें मिलेगा एक्टिव के ऑब्जेक्ट में से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट है अ स्पीच। अ स्पीच हमें इधर लेके जाना है, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद इज देखिए हमें कहां से मिल रहा है, कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव में से हमें मिल रहा है इज। तो इज एम आर या वॉज वर या विल बी शैल बी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंटिन्यूअस के तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को आपने छेड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है, इनके साथ सिर्फ आपने बीइंग ऐड कर देना है, बीइंग। तो इज एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि स्पीच सिंगुलर है तो इज सिंगुलर के साथ ही आता है। अ स्पीच इज, इसके साथ ऐड कर देंगे हम बीइंग। अ स्पीच इज बीइंग, तो ये मेकिंग थर्ड फॉर्म मेड। अ स्पीच इज बीइंग मेड बाय, और ये सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि ही किस में चेंज हो रहा है, हिम में। तो आप इसको लिख देंगे हिम। तो ये सेंटेंस हो गया अ स्पीच इज बीइंग मेड बाय हिम। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये है हमारी कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो बिल्कुल सिंपल सी, आपने कोई खास एडिशन नहीं किया होता, आपको कोई खास एडिशन नहीं करना होता। आपने सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, अगर वो प्रोनाउन है तो उसकी शक्ल बदलेगी, अगर नाउन है तो उसकी शक्ल नहीं बदलेगी। अली रिमेन्स अली, नाउन नाउन ही रहता है ऑब्जेक्ट की जगह पर भी और सब्जेक्ट की जगह पर भी। तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर एक्टिव सेंटेंसेस में, यानी कि अगर एक्टिव सेंटेंसेस के प्रेजेंट डेफिनेट
या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे और सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो उनके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रही होगी। जैसे ही ईट्स फूड, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई। अली रोट अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी है, वो आपने लगानी है। और बाय का इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया कि जो सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं उनके पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल होगा, और जो ओरिजिनली सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के होते हैं उनमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको ओरल एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दूध उबल रहा है। इस सेंटेंस के अंदर आप इसको, ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस है कि दिखने में ये एक्टिव का लगता है लेकिन ये एक्टिव सेंटेंस नहीं है। इसको जरा समझिए कि दूध उबल रहा है। दूध एक चीज है, एक नाउन है, इसके ऊपर काम हो रहा है। उबलने का काम किसके ऊपर हो रहा है? दूध के ऊपर। इसी सेंटेंस के अंदर दूध उबल रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई डूअर नहीं है। दूध को उबालने का काम कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं कर रहा है। तो ये सेंटेंस होगा ओरिजिनली पैसिव वॉइस का। इसका एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता क्योंकि इसको करने वाला मौजूद ही नहीं। तो इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे मिल्क इज बॉइलिंग, तो उसका मतलब हो जाएगा दूध उबाल रहा है। यानी दूध जो है वो काम करने वाला है, और काम क्या कर रहा है वो? बॉइलिंग का। यानी दूध उबाल रहा है। उबल रहा है इसका तर्जुमा नहीं बनेगा, दूध उबाल रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा मिल्क इज बीइंग बॉइल्ड, दूध उबल रहा है। इसी तरह खाना पक रहा है, हम आम लाइफ में बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, खाना पक रहा है। तो खाना पक रहा है ये एक एक्टिव सेंटेंस नहीं है, ये भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि खाना जो पकने का काम है। अच्छा, किसी सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये भी मैं आपको ओरली बताता हूं। किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को सर्च करना है कि आपने उसको एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट तो बनाना होता है, तो इसलिए आपको उसका ऑब्जेक्ट सर्च करना जरूरी है। तो सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपने दो क्वेश्चन जहन में रखने हैं, दो क्वेश्चन। नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 होम, जिसका मायने है किसे और क्या। के एक इंग्लिश सेंटेंस है, उसमें आपने देखना है कि जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है और किसे हो रहा है, यानी वो काम किसके ऊपर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर आप खाना पक रहा है, इस जुमले में देखेंगे तो खाना पकने का जो काम है, पकना किसके ऊपर हो रहा है? खाने के ऊपर। तो खाना तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, खाना तो काम नहीं कर रहा, खाना खुद ब खुद तो नहीं पकेगा, जाहिर है उसको कोई ना कोई पकाएगा। पकाने वाला डूअर है वो मौजूद नहीं, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ओरिजिनली। तो इस सेंटेंस को भी आप क्या करेंगे? एक्टिव में नहीं लिख सकते। जैसे कि फूड इज कुकिंग, इसका मतलब क्या बन जाएगा? खाना पका रहा है, यानी खाना खुद कुछ ना कुछ पका रहा है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग सेंस हो गई। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि ये ओरिजिनली पैसिव वॉइस है, इसको ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे? द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना पक रहा है। समझ आ गई जी? इसमें आपने देखा कि बाय का इस्तेमाल नहीं। द मिल्क इज बीइंग बॉइल्ड, बाय का इस्तेमाल नहीं। द फूड इज बीइंग कुक्ड, बाय का इस्तेमाल नहीं। जो ओरिजिनली पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको लिखा कि बाय का इस्तेमाल कंडीशनल है। इसी तरह एक और सेंटेंस, जैसे सड़कें बनाई जा रही हैं, तो ये भी ओरिजिनली पैसिव वॉइस का, इसके अंदर डूअर नहीं है, सड़कें बनाने वाला मौजूद नहीं है। तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? द रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। बाय का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिनली पैसिव वॉइस है, इसके अंदर डूअर मौजूद नहीं है, काम करने वाला मौजूद नहीं है। तो जी डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चीजें सारी की सारी क्लैरिफाई हो गई होंगी, समझ आ गई होगी। अब हम कुछ सेंटेंसेस जो मैंने पिछली लिस्ट में आपको दी थी कि किन टाइप्स के सेंटेंसेस हम
एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जो उन 5 टाइप्स से रिलेटेड होंगे जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट पे डिस्कस की थी, ताकि आपको समझ आए कि कैसे ओवरऑल सारे के सारे टाइप्स के सेंटेंसेस को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ रहिए जी। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हम चंद एक सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये वो सारी 5 टाइप्स से रिलेटेड हैं जिन जिन टाइप्स की हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल। तो वही रूल्स, वही चीज़ें हमने जहन में रखनी है व्हाइल कन्वर्टिंग दीज सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए जो कि हमें ऑब्जेक्ट के एक्टिव के ऑब्जेक्ट से मिलेगा। आप लिखेंगे एन एप्पल। उसके बाद है ईट चूंकि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट की है, तो हमें प्रेजेंट डेफिनेट के लिए इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। एप्पल सिंगुलर है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे इज। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय। ये सब्जेक्ट एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में जबकि आके ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाय मी। इसका हो गया पैसिव। आई ईट एन एप्पल डेली, एन एप्पल इज ईटन बाय मी डेली। तो नेक्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। तो इसके भी हमें जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए पैसिव वॉइस का, तो वो हमें मिलेगा एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। तो ये हो जाएगा सॉन्ग्स। ये डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की कन्वर्जन में हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी होती है इज एंड आर में से एक चीज। तो ये सॉन्ग्स प्लूरल है चूंकि, तो हम इसके लिए आर इस्तेमाल करेंगे। सॉन्ग्स आर नॉट, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। याद रखना है आपने कि सिंपल सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट वैसे ही आ जाएगा। सॉन्ग्स आर नॉट, ये सिंग फर्स्ट फॉर्म, ये बन जाएगी थर्ड फॉर्म संग। सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। शी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉन अ प्राइज। तो अ प्राइज इसका ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव का सब्जेक्ट। अ प्राइज। वॉन सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने समझा कि वॉज बाय हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अ प्राइज वॉज वॉन। वॉन सेकंड एंड थर्ड सेम फॉर्म होती है तो ये वॉन ही आएगा। अ प्राइज वॉज वॉन बाय, ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा। अ प्राइज वॉज वॉन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज बीन लर्निंग द टेबल सिंस मॉर्निंग। ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, जिसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो आप देखिए कि क्या ये सेंटेंस, इसकी उर्दू देखिए, इसकी उर्दू है ही हैज बीन लर्निंग द टेबल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पहाड़े याद कर रहा है। अब यही सेंटेंस हम पैसिव में अगर देखें, सुबह से पहाड़े उससे याद हो रहे हैं। उससे, उसके जरिए से सुबह से पहाड़े याद हो रहे हैं या पहाड़े याद किए जा रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है। इसका ऑब्जेक्ट है टेबल्स, तो आप लिखेंगे द टेबल्स। तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ आपने बीइंग का वर्ड इस्तेमाल करना है। तो हैज बीन, हैव बीन इसका एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब है। अब चूंकि टेबल्स जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या लिखेंगे, हैव बीन।
तो आप लिखेंगे हैव बीन, उसके बाद आप बीइंग का एडिशन करेंगे। द टेबल्स हैव बीन बीइंग, ये लर्निंग थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लर्नड, लर्नड बाय, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय हिम सिंस मॉर्निंग, ये वैसे ही आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, राइट। द टेबल्स हैव बीन बीइंग लर्नड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर नॉट अटेंडिंग द क्लास। तो इसमें ऑब्जेक्ट है द क्लास, तो जो बन जाएगी हमारी पैसिव की सब्जेक्ट द क्लास। उसके बाद है वर्ब, मैंने आपको बताया कि वॉज वर्ब जो है वो वॉज वर्ब ही रहता है, उसके साथ सिर्फ बीइंग का एडिशन करना होता है। द क्लास, अब चूंकि क्लास सिंगुलर है तो ये वर्ब नहीं आएगा, वॉज आएगा। द क्लास वॉज नॉट बीइंग अटेंडेड, ये अटेंडिंग थर्ड फॉर्म बन जाएगी अटेंडेड बाय, दे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में बन जाएगा देम, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। द क्लास वाज नॉट बीइंग अटेंडेड बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल है ही विल बी प्लकिंग फ्लावर्स। ये भी मिसकंसेप्शन था इस टेंस के लिए भी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का फिक्रा पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो ये भी बनता है, बन सकता है। तो देखिए इसमें हमारे पास फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है जो बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। फ्लावर्स विल बी, कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ आपने बीइंग का एडिशन करना है, तो वो उसका पैसिव बन जाएगा। फ्लावर्स विल बी बीइंग प्लक, थर्ड फॉर्म प्लक्ड बाय, और ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। क्लियर? फ्लावर्स विल बी बीइंग प्लक्ड बाय हिम, फूल उससे तोड़े जा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है डू दे प्ले क्रिकेट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस में हमें डू नजर आ रहा है, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। डू डज आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या उसके साथ एस या ईएस लगे तो वो प्रेजेंट डेफिनेट होता है। तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस का जो कन्वर्ट होता है वो होता है इज एम आर। तो हमने इसके एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है कि ये सिंगुलर है, तो हमने उसी को फॉलो करते हुए इज एम आर में से एक चीज सिलेक्ट करनी है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट इज क्रिकेट प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, ते सब्जेक्ट है देम हो जाएगा इंटरोगेटिव साइन वैसे ही आ जाएगा। इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई आर यू लर्निंग दिस पोएम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आर लर्निंग, तो इसका भी हम वैसे ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है दिस पोएम, लेकिन इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका जो इंट्रोगेटिव WH फैमिली का वर्ड होता है, सिवाय हु के बाकी सारे WH फैमिली के वर्ड्स सेम टू सेम आते हैं। ये वाई वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि दिस पॉइंट सिंगुलर है तो हमें इज एम आर में से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेना है जो कि इज। वाई इज दिस पोएम बीइंग का एडिशन करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस की असल हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना है। वाई इज दिस पोएम बीइंग, लर्निंग का थर्ड फॉर्म लर्न्ड बाय, ये हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का जो कि पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि सेम ही रहता है। ये इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। वाई इज दिस पोएम बीइंग लर्न्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन फ्लाई अ काइट। ये मॉडल वर्ब्स का एक सेंटेंस है
कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो इनको आपने कैसे करना है, देखिए फॉर्मूला सेम, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, अ काइट कैन। मॉडल वर्ब्स के जो सिंगल वर्ड होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इन सब के साथ जो सिंगल मॉडल वर्ब्स हैं एक लफ्ज पर मुश्तमिल, इन सब के साथ बी ऐड करना है और फॉर्म वैसे ही ऑटोमेटिकली थर्ड लगा देनी है। इनके असल मॉडल वर्ब्स के साथ सिर्फ बी लगाना है और जो डबल मॉडल वर्ब्स हैं जैसे शुड हैव, कुड हैव, तो उनके साथ आपने मस्ट हैव, इनके साथ आपने हैव के बाद बीन लगा देना है। मॉडल वर्ब्स के लिए दोबारा आप समझ लें कि जो सिंगल वर्ड के मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ आपने सिर्फ बी का एडिशन करना है तो वो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। और जो डबल वर्ड के हेल्पिंग वर्ब्स हैं मॉडल वर्ब्स जैसे कि शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, माइट हैव, तो उनके साथ आपने जो हैव वाले हैं उनके साथ आपने बिन लगा देना है तो वो उसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अ काइट कैन बी फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय, ये हमारा सब्जेक्ट एक्टिव का जो कि पैसिव का बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाय हिम। अ काइट कैन बी फ्लोन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी मॉडल वर्ब का एग्जांपल है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। आवर पेरेंट्स इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेंगे। आवर पेरेंट्स शुड, ये जैसे मैंने पहले बताया कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, सिंगल वर्ड के साथ आपने सिर्फ बी का एडिशन करना है तो ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। आवर पेरेंट्स शुड बी, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड बाय, ये हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है जो कि पैसिव का बन जाएगा अस ऑब्जेक्ट, राइट। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये चंद एक सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, इनको आप अच्छे से समझिएगा, रीड कीजिएगा और इसी तरह के सेंटेंसेस आपको मैं सेंटेंस वोकैबुलरी में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देखिएगा, उनको भी कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के ऊपर पूरी ग्रिप हो सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अभी जो हमने एग्जाम्पल्स की या जिनको हमने कन्वर्ट किया वो सिर्फ टेंसेस के रिलेटेड सेंटेंसेस थे, मॉडल वर्ब्स, लेट के सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इन्फिनेटिव सेंटेंसेस की अगली फर्दर आने वाली वीडियोस में मैं आपको उनकी कन्वर्जन भी बताऊंगा विद रूल्स एंड फॉर्मूला ताकि आपको उनकी भी समझ आ सके। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है और होपफुली यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट टुडे। थैंक यू सो वेरी मच।